أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات یا کے ساتھ الف مدہ ہے، اس نے ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف ہو اور اس سے پہلے والا حرف کے اوپر زبر ہو تو اس سے الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ میں آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ ایامم، یا تنوین کا ادغام ہے، تنوین کو آپ میم کے اندر ملا دیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ معدودات، دو زے کی تنوین کے اوپر وقف کریں گے، دو زے کی تنوین کو جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے معدودات۔ دال کے ساتھ واو مدہ ہے، اس طرح پہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش، تو اسے آپ واو مدہ کہیں گے۔ واو مدہ میں بھی آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور کھڑا زبر میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایاما معدودات، ایاما معدودات، فمن كان منكم مریضن، دیکھیں یہاں نون سکین کا اکفا ہے، نون سکین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کاف کے ساتھ الف مدہ ہے تو الف مدہ میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس سے الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ میں بھی آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فمن کان منکم، یہاں میم سکین کا ادغام ہے، میم سکین کو آپ میم کے اندر ملا دیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میم کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو سیدھا میم سے ملائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے۔ مریغن، وا کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور وا کے ساتھ یا مدہ ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ یا مدہ میں بھی آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مریغن او علی سفر فعدۃ، ٹھیک، یہاں بھی تنوین کا اکفا ہے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے اور یہاں تنوین کا ادغام ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین کو میم کے اندر ملا دیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے۔ فعدۃ من ایام اخر، ٹھیک ہے۔ یہاں نون سکین کا اظہار ہے اور یہاں تنوین کا بھی اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اوپر وقف کریں گے تو جو زبر ہے اسے آپ جزم سے بدلیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے۔ اخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ایام اخر، ٹھیک ہے۔ تاکہ گول تا کے اوپر وقف کریں گے تو گول تا کو گول ہا سے بدلیں گے اور ہا کے اوپر جزم پڑھیں گے تو پڑھیں گے فعدہ۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين، لمبی یا اور الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دال کے ساتھ یا مدہ ہے، اس لیے الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو اوپر سمجھا دیا۔ یطیقونہ، اور کے ساتھ یا مدہ ہے، اس لیے الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف کے ساتھ واو مدہ ہے، اس لیے الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور الٹا پیش میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یطیقونہ فدیۃ،
दाल के ऊपर जज़्म हो दाल में कलकला करते, फिद फिद आवाज़ 2 मरतबा सुनाई देंगी। और यहाँ तनवीन का इक्फा है, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। फिद यतू तआमु तआमु, ठीक है। ऐन के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिस्कीन मिस्कीन, काफ के साथ या मद्दा है इसलिए अलिफ के बराबर खींचेंगे और 2 ज़ेर तनवीन के ऊपर वफ़ करेंगे तो 2 ज़ेर तनवीन को आप जज़्म से बदलेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे मिस्कीन वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। अब यहाँ वफ़ करेंगे, जब वफ़ करेंगे तो 1 अलिफ 2 अलिफ ढाई अलिफ और 3 अलिफ तक आप यहाँ खींच सकते हैं। फमन ततव्वअ, यहाँ नून सकीन का इक्फा, नून सकीन की आवाज़ को नाक पे छुपाएंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। फमन ततव्वअ खैरन खैरन, इस या को खींचना नहीं है, या लीन है तो आप या लीन को जल्दी से और नरमी से पढ़ेंगे। और यहाँ तनवीन का इक्फा है, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। खैरन फहुव खैरुल लह फहुव खैरुल लह। और उल्टा पेश के ऊपर वफ़ करेंगे तो उल्टा पेश को आप जज़्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे खैरुल लह खैरुल लह। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह वअन तसूमू, नून सकीन का इक्फा है, नून सकीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। और यहाँ भी वाव मद्दा है, यहाँ भी वाव मद्दा है इसलिए 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तसूमू खैरुल लकुम खैरुल लकुम, ये जो या नज़र आ रही है इसको आप खींचेंगे नहीं, या लीन है, या लीन को खींचते नहीं है, या लीन को जल्दी से और नरमी से पढ़ते हैं, ठीक है। या लीन किसे कहते हैं? या के ऊपर जज़म और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर, तो उस आप या लीन कहेंगे। या लीन को आप खींचेंगे नहीं, या लीन को जल्दी से और नरमी से पढ़ेंगे। खैरुल लकुम, क्या है तनवीन का इदगाम होगा लाम के अंदर मगर गुन्ना नहीं करना है, ठीक है। खैरुल लकुम इन कुंतुम, यहाँ भी नून सकीन का इख्फा है, यहाँ भी नून सकीन का इख्फा है। दोनों जगह आप नून सकीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। और यहाँ मीम सकीन का इजहार है और यहाँ भी मीम सकीन का इजहार है, ठीक है। इस मीम में और इस मीम में आप गुन्ना नहीं करेंगे। वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। अब यहाँ वफ़ करेंगे तो नून के ऊपर ज़बर पड़ेंगे और वफ़ करेंगे जब आप 1 अलिफ 2 अलिफ ढाई अलिफ और 3 अलिफ तक खींच सकते हैं। वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। शहरु रमज़ानल्लज़ी, रा के ऊपर पेश है, रा को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ रा के ऊपर ज़बर है तो भी रा को मोटा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे। और वाद के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है तो आप 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ नून साकिन है तो नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। फ़ीहिल या मद्दा है इसलिए आप 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। या मद्दा किसे कहते मैंने आपको ऊपर बता दिया। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु। क़ुरआनु रा सकीन से पहले पेश है, रा को मोटा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे, ठीक है। क़ुरआनु हुदल, हुदल या नहीं पढ़ेंगे, दाल को सीधा लाम से मिलाएंगे। हुदल लिन्नासी, नून के ऊपर तशदीद नून में गुन्ना करेंगे। नून की आवाज़ को 2 सेकंड के नाक में रोके रखेंगे तो उससे गुन्ना अदा होगा। और नून के साथ अलिफ मद्दा है तो 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे भी। लिन्नासी वबय्यिनातिन वबय्यिनातिन, खड़ा ज़बर में भी 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। ना यहाँ तनवीन का इदगाम है, तनवीन को मीम के अंदर मिला देंगे और 1 अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे। वबय्यिनातिन मिनल हुदा, मिनल
हुदा लंबिया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, वल फुरक़ान। रा सेकंड से पहले पेश है, रा को मोटा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे, ठीक है। काफ के साथ अलिफ मद्दा इसलिए अलिफ के बराबर खींचेंगे और नून के ऊपर वफ करेंगे तो ज़ेर को जज़्म से बदलेंगे फुरक़ान। और आप यहाँ वफ करेंगे तो एक अलिफ, दो अलिफ, ढाई अलिफ, तीन अलिफ तक आप खींच सकते हैं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहीद मिनकुमुश शहर फल्यसुम। अब यहाँ हा के ऊपर वफ करेंगे तो हा के ऊपर जज़्म पढ़ेंगे, आखिर में सिर्फ आप हा की आवाज़ को मेंशन करेंगे फल्यसुम। यहाँ भी नून सकीन का इक्फा है, यहाँ भी नून सकीन का इक्फा है। नून सकीन की आवाज़ को नाक पे छुपाएंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। फमन शहीद मिनकुमुश शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रा के ऊपर वफ करेंगे तो रा के ऊपर जज़ पढ़ेंगे, रा को पूर पढ़ेंगे उखर, ठीक है। और यहाँ तनवीन का इदगाम है, तनवीन को मीम के अंदर मिला देंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे तुम। यहाँ तनवीन का इक्फा है, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे रिंफ, ठीक है। और यहाँ भी नून सकीन का इक्फा है, नून सकीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे वमन, ठीक है। और यहाँ अलिफ मद्दा इसलिए अलिफ के बराबर खींचेंगे और खड़ा ज़बर में भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, लंबी आ को पढ़ना नहीं है। वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। रा के ऊपर वफ करेंगे तो रा के ऊपर जज़म पढ़ेंगे और रा को पूर पढ़ना है, ठीक है। उस्र रा के साथ यहाँ मद्दा है, यहाँ मद्दा में एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ रा के ऊपर ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे, पूर पढ़ेंगे। यहाँ भी यहाँ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे, पतला पढ़ेंगे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, ठीक है। अल्लाह के नाम से पहले पेश है, अल्लाह का नाम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। वली तुक मिलुल, वाव और अलिफ नहीं पढ़ेंगे, लाम को सीधा इस लाम से मिलाएंगे, ठीक है। वली तुक मिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह, वाव अलिफ और ये अलिफ तीन हरूफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रा को सीधा इस वाले नाम से मिलाएंगे, रा के ऊपर पेश है, रा को मोटा पढ़ेंगे। वली तुकब्बिरुल्लाह आला, लंबिया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रा के ऊपर पेश है, रा को मोटा पढ़ेंगे, वाव मद्दा इसलिए अलिफ के बराबर खींचेंगे और नून के ऊपर वफ करेंगे तो जो ज़बर है उसे आप जज़्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे तशकुरून। और आप यहाँ वफ करेंगे, जब वफ करेंगे तो एक अलिफ, दो अलिफ, ढाई अलिफ और तीन अलिफ तक खींच सकते हैं। वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ठीक है। तो आज का सबक यहीं तक है, आयत नंबर 185 तक। इंशाल्लाह दूसरा सबक आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा।